हमें पता होना चाहिए अपनी सराउंडिंग में हो क्या रहा है. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट और ऐसे फिस्ट बना के चलना है. इन केस एनी अटैक हैपन्स, आपका वेपन आपकी चाबी है. फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो मैं अटैक का डिफेंस नहीं कर सकती. किसी भी बंदे को साइकोलॉजिकली हरा देंगे तो फिजिकली हराने में मुश्किल नहीं होगी. इस तरह से मेरी हड्डियों को कोई नुकसान नहीं होगा, इनको प्रेशर और फोर्स ज़्यादा लग जाएगी. हर एक पे हम रहम कर देते हैं, खुद पे नहीं करते, खुद को भूल जाते हैं. अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाओ. दैट इज़ योर सेल्फ डिफेंस. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. I hope you all are good and you had a good day. And if not a good day, then let's make it one. This is Fajr Hashmat and I'm working as a sub-inspector in Punjab Police. I'm working like for 2 years of my service in this department and I come from Multan, the city of saints. I got my basic education from Multan, like my schooling and my college, and then my BS and then my MPhil in Punjab University, Lahore. In my MPhil, my majors were criminal psychology, women's psychology, gender studies, and environmental psychology. So I'm a therapist as well as a criminal psychologist. So today, I'm very humble and thankful to the foundation that they invited me for the topic of self-defense. So you all are software engineers, environmentalists, food scientists, mass comm, and mostly are from LC and PU and other universities, which means कि आप अपने academics में बहुत high achievers रहे होंगे, that you are studying from the prestigious institutes. See, in my academic years, I was a very low achiever in my metric and FSE, but then during my university years, I started using my defenses, and alhamdulillah, I got a medal in BS and then again in my MPhil. So that's how defenses work. My story of defense started from academics. I was mocked off. I didn't know any word of English. I did spelling mistakes in my academics. But how I completely shifted from a low achiever to high achiever, it was all defense mechanism that I used psychologically. I'm a psychologist and we will cover self-defense in every manner. Whatever comes in your mind, hold it and then we'll discuss it. Do you guys have pencils or notebooks? Okay. So उस पर आप सबसे पहले जो जो चीज़ें मैं बोलूँगी उनमें से कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है और उसका एंड पे मुझे आंसर देना है. अब पहला क्वेश्चन इसमें आप लिखें कि डिड एनी वन अटैक्ड मी एवर. और अगर आपका कोई अटैकर है तो उसका इमेज अपने माइंड में रखें और आप इस सेशन को उसी से रिलेट करके सुने. It could be anything, anyone, any family member, anyone on the road, anyone, even yourself, if you have ever damaged you. Self-defense consists of 2 words बेटे, self and defense. Defense का मतलब है कि दिफा करना, हिफाजत करना, बचाना. और self is you, me. खुद को बचाना है किस चीज़ से? हर चीज़ से जिससे हमें नुकसान हो. So by definition, self-defense is the defense of a person's interests, choices, life, and everything important to him. And specifically, self-defense is protecting that thing by using force. So the use of force to protect yourself against someone who is attacking you is self-defense. Self-defense की 3 types हैं. Number 1, armed. अगर आपके पास weapon हो तो self-defense कैसे करना है. Number 2, unarmed. अगर आपके पास वेपन नहीं है तो कैसे करना है. नंबर 3, वर्बल, कि आप वर्बली अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो. वी लिव इन पाकिस्तान, इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर द रेट ऑफ वायलेंट क्राइम्स इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. यहाँ पर जेंडर बेस्ड क्राइम्स और इन सारी चीज़ों में बीइंग अ वुमेन, सेल्फ डिफेंस इतना इम्पॉर्टेंट है दैट यू हैव नो आइडिया कि आप लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस को लर्न करना कितना ज़रूरी है. क्या आपके जहन में कोई क्राइम आ रहा है, किसी चीज़ का नाम ऐसा आ रहा है जो आपके साथ हो सकता है एज वुमेन? एनीवन? हरासमेंट. एनीथिंग एल्स? किडनैपिंग. मोर? और क्या हो सकता है आप लोगों के साथ जिससे खुद को बचाना है? मोबाइल स्नैचिंग. यस.
ट्रैवल करते हुए इशू हो सकता है। और एनीथिंग एल्स? ओके, सो वायलेंट क्राइम्स, सबसे पहले बेटे रेप, number one crime in Pakistan. As women, we all are vulnerable to this. Anyone can rape you, inside, outside, wherever you are a soft target, you can be raped, and you should keep this in mind. How to deal with that after this happens? First of all, हमने ये होने नहीं देना, हमने टेक्निक्स को लर्न करना है। आज हमने खुद को इस काबिल बनाना है कि हमारे साथ ये हो ना, अल्लाह ना करे हमारे साथ ये हो, तो उसके बाद भी हमने खुद को डिफेंड करना है और डिफेंसेस यूज़ करके इस चीज़ को हैंडल करना है। नंबर 2, डाउरी डेथ्स। हमारे यहाँ जहेज़ कम लेने पे या बिल्कुल भी ना लेने पे बहुत डेथ्स होती हैं, और इसके अगेंस्ट भी हमें अपने डिफेंसेस को यूज़ करना है। नंबर 3, किडनैपिंग, जैसे इन्होंने बात किया, साइबर क्राइम्स, साइबर अटैक्स, child marriages. Any of you has been through it? Feel free. Have you seen any child bride in your life? How many of you? Okay, so did you try to help them and to get them out of the situation? Okay, that's the conditioning. But child brides, God, that's pathetic. It's a crime. It's a very bad situation to be in. और आज हम जो टेक्निक्स लर्न करेंगे उनसे आपने अगर कभी दोबारा चाइल्ड ब्राइड देखी ना, आपने उसको उससे निकालना है। you can protect others. That is your self defense. It will make you feel good about yourself कि आपने किसी और को प्रोटेक्ट किया है, किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, किसी और की लाइफ चॉइसेस को आपने प्रोटेक्ट किया है। ओके, अदर देन दैट, ऑनर किलिंग्स। आपने कभी किसी को गैरत के नाम पे मरते देखा है? हाउ मैनी ऑफ यू? स्टिल द नंबर्स आर ग्रेट। गलती क्या होती है कि कोई मैसेजेस कर दिए, किसी को ब्रेकअप हो गया, इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड अटैक्स। यू नो एनीवन? सी कि ऐसा कोई एक क्राइम नहीं है जो हमने देखा ना हो, या हम इस रूम में कोई जानता ना हो किसी ऐसे क्रिमिनल को जिसके साथ, किसी विक्टिम को जिसके साथ ये हुआ ना हो। यहाँ पे गलती क्या होती है? ब्रेकअप हो गया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई मंगनी टूट गई, ये सब एज वुमेन हमारे साथ ज़्यादा होता है। एसिड अटैक्स, साइकोलॉजिकल किलिंग्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारियाँ, इनके खिलाफ भी हमने अपना डिफेंस खुद करना है। तो सेल्फ डिफेंस में हम इसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्निक्स पे बात करते हैं कि हम में अगर कोई अटैक करता है तो हम फिज़िकल की मैं बात कर रही हूँ कि फिज़िकली अनआर्म्ड सिचुएशन में खुद को कैसे डिफेंड करेंगे। इमेजिन कि आप किसी रोड पे चल रही हैं या आप किसी इनसाइड इंडोर में हैं, तो अगर कोई आपको मारने की कोशिश करता है बिल्कुल ही उठ के, तो आप क्या करोगे? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? यू विल गेट अटैक। अगर आपका इन्वायरमेंट में नज़र नहीं रखी हुई है आपने, तो यहाँ से हमें पहली टेक्निक पता चलती है कि अवेयरनेस, अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर चीज़ पे हमारी नज़र होनी चाहिए। हमारे सर अभी उठ के बाहर गए हैं, हमें पता है, होना चाहिए कि हमारे सर यहाँ से उठ के बाहर गए हैं, पीछे वालों ने देखा होगा। हर चीज़ से रिलेटेड कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, हमें पता होना चाहिए अपनी सराउंडिंग में हो क्या रहा है। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। दूसरी टेक्निक ये है कि हैमर स्ट्राइक। आप सड़क पे चल रही हैं, आप पे अटैक हो जाता है, चाबी होती है आपके पास ट्रैवल करते हुए, या आप गाड़ी पे आती हैं, या कोई नौकरी करती हैं, या यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो आपने वॉक करते हुए चाबी को अपने ना इस फिंगर में रखना है और ऐसे फिस्ट बना के चलना है। इन केस एनी अटैक हैपन्स, आपका वेपन आपकी चाबी है। आपने उस चाबी से या तो मुक्का मार दें या थ्रस्ट कर दें फिस्ट को नीचे, और उस चाबी को यूज़ करें बिल्कुल ही नीचे। आपके पास इतनी फोर्स होनी चाहिए कि वो चाबी आपका वेपन चाकू जैसा काम करेगा अगर आप अपने मेंटल पावर्स को उस टाइम पे यूज़ करेंगे। अच्छा, आप सेल्फ डिफेंस की सेशन में ये नहीं सोचें कि आई एम फ्रेजाइल, आपका बॉडी वेट कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सबका 50-60, इससे ज़्यादा भी है तो भी यू थिंक सो कि मैं अगर
फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो मैं अटैक का डिफेंस नहीं कर सकती। कोई भी डिफेंस यहाँ से होता है, इट डजेंट रिक्वायर फिजिकल एस्पेक्ट उतना जितना यहाँ से। आप अगर चाहें तो एक पूरा पहाड़ गिरा सकती हैं सिर्फ यहाँ से सोच के, अपने दिमाग से। तो आपने अपने अटैकर को भी हराना है अपने दिमाग से। आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस वाले किसी क्रिमिनल डाकू के पीछे जब भी आते हैं तो वो ऊंची ऊंची बोलते हैं, गालियाँ देते हैं अक्सर। वो क्यों देते हैं? वो साइकोलॉजिकली क्रिमिनल को डिफीट करने के लिए। किसी भी बंदे को साइकोलॉजिकली हरा देंगे तो फिज़िकली हराने में मुश्किल नहीं होगी। साइकोलॉजिकली उनको कोई गाली दे दी, कोई ऊंची बोले इतनी पावर से कि अगले को लगे कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इससे दब गया वो फौरी। साइकोलॉजिकली आपने डिफीट कर दिया। यू आर व्हाट यू थिंक हियर। तो हैमर स्ट्राइक में आपने चाबी का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ही पंच करके चाबी से, और वो आपने करना कहाँ है? वल्नरेबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आंख पे कर लिया, नाक बहुत वल्नरेबल है, लिप्स पे, उसके बाद जेनिटल एरियाज। मेल्स, इफ़ योर अटैकर इज़ अ फीमेल और मेल डजेंट मैटर, जेनिटल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने यही ट्राई करना है कि आप उनको वल्नरेबल पॉइंट्स पे हिट करें और उनको वहीं मारें ताकि आप अपना अच्छे से डिफेंस कर सकें। फिर हम एल्बो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। हमारे सर हमारे साथ आए हैं, वो आपको साथ साथ वो समझाएंगे कि किस तरह से आपने कौन सी टेक्निक को कैसे यूज़ करना है। करंटली आई एम पोस्टेड इन एलीट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, बेदिया रोड। यस। अच्छा, किस मंथ में किया हुआ है? आई थिंक हम लोग को 2 मंथ्स हो गए। हमने पुलिस लाइंस की इंटर्नशिप की थी, वहाँ पे हम एलीट फोर्स पे गए थे। आई थिंक हम लोगों ने आपको वहाँ देखा भी होगा, वहाँ पे आते रहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स ना, तो हम वहीं पे होते हैं। हमारे सर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं जूडो और कराटे के। ही इज़ एक्सपर्ट इन जूडो, तो ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊँगी। सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। कोई भी की है ना, उसको आपने ऐसे पकड़ के यहाँ रखना है ऐसे, ठीक है? इससे अगर आप उस पर अटैक करेंगे तो वो काफ़ी जो है ना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कोशिश करेंगे इसको ऐसे रगड़ें उसकी बॉडी के साथ। अगर उसने आपको पीछे से पकड़ा हुआ है तो ऐसे करके यूज़ करना है आपने। अगर उसने आपको आगे से पकड़ा हुआ है तो कोशिश करें उसके फेस पे अटैक करें आप, ठीक है? और सेकेंडली इसी तरह स्क्रैच कर सकते हैं आप, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद हमने बात की थी एल्बो स्ट्राइक्स की, कि ब्लॉकिंग कैसे करेंगे। अटैकर ने अगर सामने से वार किया और पीछे से वार किया, वो दोनों हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं। एल्बो के साथ एल्बो स्ट्राइक, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपको पीछे से ऐसे से अटैक किया हुआ या पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको अपवर्ड लेके जाके, ठीक है, उसको ऐसे फोर्स करें पीछे को। कोशिश करें कि उसके सर पे लगे ये चीज़, इधर से ऐसे, तो आप अपने आप को जो है ना उससे वो सेव कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव एल्बो अटैक्स के विद द एल्बोज हम फ्रंट वाला कैसे ब्लॉक कर सकते हैं वो भी बताएं। टेक्निक वो आपने बेस वाली बताई है इनको, फिस्ट वाली? जी, एक और टेक्निक है बेस ऑफ हैंड अटैक। आपका ये ऐसे बनाएं, आपने ये रिस्ट अपनी इस तरह यूज़ करनी है, इस तरह, और उसकी नोज़ पे या इस जगह पे आपने अटैक करना है। उससे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बेनिफिशियल होगा। आप खड़ी होकर करके दिखाइएगा सर, आप कैसे बनाइए है बेस ऑफ फ्रंट हैंड। से ऐसे आप नोज़ पे मारेंगी तो उम्मीद है उसकी नोज़ टूट जाएगी। जी मिस, सही बनाया है इन्होंने। फोर्स के साथ ऐसे। यस, ये ये front attack के लिए है। जी, दिस पार्ट ऑफ योर हैंड, बेस ऑफ योर हैंड अटैक, ये यूज़ करना है आपने। करें यूज़ सर। यहाँ मेरी ये चिन बोन तोड़ दें ज़रा, ये इस जगह पे इसमें इतनी ताकत है। इफ़ यू यूज़ दिस, बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है। यस, आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों जगह। इसमें पावर इतनी होगी कि अगर आप उसके चेस्ट पे भी यूज़ करते हैं अटैकर के तो भी उसको धक्का मिल जाएगा। इसमें इतनी पावर है। फिस्ट भी आप लोग मुट्ठी बना के दिखाएं मुझे मुक्का मारने के लिए, सामने को उसका मुंह करें। ये बेहतरीन पोजीशन सबने गलत बनाया हुआ है। ये जो थंब है आपका, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, नो नो, यस। ये वाला जो पंच है ना, ये अगले बंदे को हिला देगा। आप सब ने बिल्कुल अच्छा देखें, आपको मुक्का बनाना नहीं आता, मुक्का मारेंगे कैसे मुक्के। इसके अलावा अगर कोई भी पंच की पोजीशन होगी ना, वो आपको खुद को हर्ट करेगा। हाँ जी, तो ऐसे करें सारे, सही मुक्का बनाएं, अंगूठा ऊपर लेके आएं। ये इस जगह पे,
नो, इसके ऊपर लिटाएं इसको, ऐसे इसके ऊपर ऐसे सीधा आना चाहिए ये। फिर आप इसको 3 पॉइंट्स पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले सर ज़रा इधर को, इनका मैं नाक तोड़ूंगी अगर इन्होंने मतलब मेरे साथ बदतमीज़ी की या मुझे अटैक करने की कोशिश की, एज एन इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन। इस तरह से मेरी हड्डियों को कोई नुकसान नहीं होगा, इनको प्रेशर और फोर्स ज़्यादा लग जाएगी। 3 इनकी बॉडी के पॉइंट्स पे हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं जिन पे हिट कर सकते हैं, सीधा, दूसरा इनके हार्ट वाले एरिया में, और तीसरा इनके जेनिटल एरिया में। हमारी इस तरह से अगर सही पोजीशन में हम बनाएंगे अपनी फिस्ट से मुक्का, तो वो ज़्यादा फोर्सफुली और ठीक से लगेगा। और आपको इसमें ज़्यादा पावर की एज इन उतनी एथलेटिक ज़रूरत नहीं है, टेक्निक ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो इसके अलावा एक चीज़ मैं एडिशन करना चाहूँगा कि अगर सामने से कोई इस तरह की पोजीशन है कि आप उस पर सीधा अटैक नहीं कर पा रहे, तो आपने साइड से कोशिश करनी है कि इस जगह या इस जगह हिट करें, ठीक है? ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जी, मोस्टली अटैकर्स अगर आपके पीछे से आते हैं, सर ने उधर मुंह किया हुआ है तो किसी ने पीछे से आके ऐसे ग्रैब कर लिया है, बियर हग की सिचुएशन में इनको बिल्कुल ग्रैब कर लिया है, तो अगर मतलब आप छोटी सी हैं वैसे ही सारी, तो इजीली बियर हग ग्रैब हो सकता है। कोई भी गला दबा देगा, कोई भी गर्दन घोट देगा, चोकिंग हो जाएगी। उसको कैसे एस्केप करना है? उसका बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आपने अटैकर का एल्बो जो है ना कंधे से छुड़वानी है किसी तरीके से। तो सर हमें बताएंगे उसको डेमोन्स्ट्रेट करके कि कैसे उसको कर सकते हैं। आपने ये एल्बो के साथ इधर अटैक करना है मेरे। जी, अब देखें, आपको इस तरह किसी ने होल्ड किया हुआ है या पकड़ा हुआ है, ग्रैब किया हुआ है, तो आप उसको पीछे कैसे फोर्स करके अपने आप को बचाएंगे? मैं यहाँ लगी रहूँगी तो बिल्कुल मुझसे नहीं होगा, तो यहाँ से मैं इनका अच्छा, इस पोजीशन में मोस्टली आपके हैंड्स फ्री होते हैं। एक हाथ में यहाँ यूज़ करूँगी अपना गला बचाने के लिए कि चोकिंग ना हो जाए, मेरा गला घुट ना जाए, किसी तरह ऐसे कर करके यहाँ पहुँच जाऊँगी। और फिर ये मेरी अल्टरनेटिव एल्बो फ्री है, तो मैं यहाँ ऐसे यूज़ करूँगी इनकी किडनी के ऊपर ऐसे। तो ये अगर आप फोर्स यूज़ करेंगी तो डेफिनेटली मुझे पेन होगा और मैं थोड़ा सा रिफ्यूज़ करके थोड़ा सा जर्क लगेगा, धक्का लगेगा, मुझे सीधा होने का चांस मिल जाएगा। फिर जो पहली टेक्निक्स लर्न की हैं उनके थ्रू हम अपने अटैकर को डील करेंगे। जी, मुक्के मारेंगे। अच्छा, अगली टेक्निक, अच्छा इस टेक्निक में आपको क्या समझ आई कि इम्पोर्टेंट क्या है इस टेक्निक में? मुझे जवाब दें। वेरी गुड, एंगल इम्पॉर्टेंट है गला बचाने के लिए और कोनी से पीछे वाले अटैकर को एस्केप करने के लिए। तो एस्केप, अगर हैंड अटैक है ना, उसकी टेक्निक क्या है? उसका नाम है कि एस्केप विद हैंड अटैक, कि हैंड से ही आपने एस्केप, सिर्फ हाथ पकड़े हुए हैं ना, उन्होंने मुझे हग नहीं किया हुआ, ऐसे मेरा गला दबाया हुआ है, तो उन हाथों से कैसे एस्केप करना है? पीछे से गला। बस मेरा इसमें काम ये है कि मैंने इनका ये हाथ अपने कंधे से पीछे कर देना है, फोर्स से ऐसे यूज़ किया मैंने अपनी टांग को, इनको जर्क देने के लिए इनके पैर पे मारें पीछे आप, और यहाँ से इनका हाथ पीछे को कर दें, ठीक है? और इस तरह से खुद को फिर सीधा करें और अटैक करें, यानी कि इनके आर्म को हटा देना है अपने आर्म से, इनके हाथ को, तो हम फ्री हो जाएंगे इस तरह के अटैक से। इस सारे गले के अटैक्स में, बियर हग्स में, इन सबको एस्केप करने के लिए आपने अपनी गर्दन को बचाना है, चोकिंग ना हो, वहाँ स्पेस क्रिएट करनी है। छोटी छोटी गर्दनें ऐसे दब जानी है, डेथ हो जाएगी। सो बी अवेयर, ओके? अच्छा, साइड हैंड लॉक एक टेक्निक है हमारे पास कि हैंड से आप लॉक कर सकते हैं अटैकर को, अपने हाथ को साइड से। अटैकर भी आपको कर सकता है ये, जैसे यहाँ फिजिबली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर अटैकर ने इस तरह से किया हुआ है, आपको साइड से हैंड्स के थ्रू लॉक किया हुआ है, तो एस्केप कैसे करना है? तो अल्टरनेटिव यही एल्बो यूज़ करनी है। इसमें पावर है बेसिकली, इस पॉइंट में, हड्डियों में पावर नहीं। भी यूज़ कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव एल्बो में फ्रंट अटैक को ब्लॉक करने के लिए इसको यूज़ करना है, ठीक? ये ऐसी जगह है यहाँ पे कुछ भी लगे ना तो ये डैमेज नहीं होगी इस पोजीशन में। सो इन केस अगर फ्रंट अटैक आता है तो आप ऐसे उसको ब्लॉक कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं होगा। आपने अपने माइंड में बताना है कि ये टेक्निक मुझे पता है, मैंने अपने आप को इससे निकालना है और ऐसे ब्लॉक करना है और आपसे हो जाएगा, क्योंकि जो आपके दिमाग को आपने बात बताई हुई है वही आपकी रियलिटी है। सी,
अच्छा, इन सारी टेक्निक्स में आप लोगों को सबसे आसान टेक्निक कौन सी लगी है? ओके, मुश्किल कौन सी है? एल्बो अटैक। वो रिपीट करें, इनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा इसीलिए ऐसे है। कौन से वाली मतलब एल्बो वाली? जी बेटा बताएं, आपको क्यों मुश्किल लगी है ये? जो इस तरह करके। हाँ हाँ। कि अगर हम एल्बर्टिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पेन होगी बहुत ज़्यादा। वो उस पेन से बहुत ज़्यादा अच्छी है जो वो आपको देता है। तो अगर उससे डैमेज ना हुआ फिर बंदे को हमें ज़्यादा डैमेज हो गया। देखिए उन्होंने अभी ये बात की है, आपने अपनी ये परसेप्शन बना ली है। आपने परसेप्शन अपनी ये रखनी है कि आई विल डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, ये इस टेक्निक बताने का मकसद ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपको 100% नुकसान होना हुआ, आपको 40% हो सकता है, आपको 50% हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए वो बेनिफिशियल है आपके लिए इन पॉजिटिव वे। हमने जो वायलेंट क्राइम्स के नाम लिए हैं बेटे, अल्लाह ना करे अगर हमारे साथ उन क्राइम्स में से एक क्राइम होने वाला हो, तो ये जो थोड़ी सी पेन है ना, ये प्राइस है फ्यूचर के नुकसान से बचने के लिए। सो एट दैट टाइम इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ, यू हैव टू पे द प्राइस। अच्छा, एक सवाल लिखें, बचाना है खुद को, क्यों बचाना है अपने आप को? वाई योर लाइफ इज़ वर्थ डिफेंडिंग? वाई माई लाइफ इज़ वर्थ डिफेंडिंग? Am I worthy enough to save? इस क्वेश्चन का जवाब आपने खुद को ही एंड में देना है, और इस सवाल का जवाब अगर आपको पता होगा ना, आप हर सिचुएशन से खुद को निकाल लेंगी कि मेरी प्राइस ये है, मैं इतनी वर्थ इट हूँ, आई कैन नॉट डाई, मेरी कोई हड्डी टूटनी नहीं चाहिए, मुझे खुद को निकालना है यहाँ से। उसके लिए जवाब देने के लिए यू नीड टू नो योर सेल्फ। हम सबको लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन हम खुद को जानते नहीं होते। वी हैव टू नो आवर सेल्फ, तो ही हम अपने एनिमी को जान सकेंगे। आप सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपने बहुत सी बुक पढ़ी होंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बुक का नाम लिखें, द आर्ट ऑफ वॉर बाय सेन त्सू। ये किताब आपने सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से लाजमी पढ़नी है। इस किताब में आपको पता चलेगा जनरली इन लाइफ, नॉट जस्ट सेल्फ डिफेंस, द आर्ट ऑफ वॉर। पतली सी किताब है, इसमें स्ट्रैटेजीज़ हैं वैसे तो वॉर की, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए जो टिप्स, जो ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, वो आपको समझ आएंगी। हमारी लाइफ में एनिमीज़ बहुत होते हैं। अगर आप डू यू थिंक कि मेरा कोई एनिमी नहीं है? एनीवन? यू थिंक सो? यू हैव नो एनिमी? स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, नथिंग टू वरी अबाउट। वी आर सो हैप्पी फॉर यू कि आपका कोई एनिमी नहीं है, बट ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है लाइफ में कि आपको कभी ज़िंदगी में किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, उसके अलावा कोई तो वो आपके दोस्त तो नहीं हुए ना जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। दोस्त नुकसान से बचाते हैं, पहुंचाते नहीं हैं। कोई नुकसान कभी भी नहीं पहुंचा। बी ऑनेस्ट। डिपार्टमेंट आपका कौन सा बताया था आपने? ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। किसी टीचर ने? बहन भाई कितने हैं? 5। मारनी पड़ी कभी? तो नुकसान तो पहुंचाया है ना। सो वेल, दे आर गुड एनिमीज़ बहन भाइयों के अलावा। लाइफ में ना हमें पता नहीं होता कभी कभी हमारे एनिमीज़ कौन है। हम अगर किसी को पता है कि मेरा क्लियरली एनिमी कौन है, वो खड़ा हो। इफ़ समबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट कि वो मेरा एक दुश्मन है, हमें बताना नहीं है, बस आप बताएं कि हमारा एक एनिमी है। नो वन? चलें ठीक है, कोई बात नहीं। योर अटैकर, योर एनिमी इज समबडी इमेजिनरी। हो सकता है नहीं है, हो सकता है। उसको इमेजिन करके आप ये सोचें कि मैंने उससे मुकाबला करना है, डिफेंस करना है। कैसे करना है? उसके लिए आपको उसको जानना पड़ेगा। उसको जानने से पहले खुद को जानना पड़ेगा। अपने आप को टाइम दें, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचें। एक हेडिंग बनाएं कि व्हाट फियर्स मी। अपने फियर्स की ना एक लिस्ट बनाते जाएं बैठे बैठे कि इस सेल्फ डिफेंस के सेशन में हम उन सारे फियर्स से डिफेंस करते हैं कि ये मेरे डर हैं और इन चीज़ों से मेरा डिफेंस खतरे में जा सकता है। डर तो लगता होगा। इज देयर एनीवन जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता? प्लीज स्टैंड अप। ऐसे क्यों है?
बेटे कि आपको कोई चीज़ नहीं डराती, व्हाट इज़ द की टू दिस स्टेज? एक दफ़ा ना मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैं ना सोई थी छत पे तो सांप आ गया था। सांप आया? मेरी ना शर्ट में आ गया था, तो चला गया था अंदर शर्ट के, इतना सा था। तो तब से मैंने ये फील किया कि तब उसने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई कुछ भी नहीं मुझे कह सकता। ओके। क्योंकि अगर सांप ने मैंने उसे टच भी किया तो उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, डरना नहीं है, बस आगे बढ़ना और सब कुछ फेस करना। जब सांप एक बहुत रिस्की सिचुएशन है, इफ़ वी इमेजिन कि आपके सांप बिल्कुल बॉडी के ऊपर क्रॉल कर रहा है, आपका रिस्पॉन्स क्या था? आपके साथ कोई और था? नहीं, मैं छत पे थी लेकिन ज़मीन पे सोई हुई थी, सारे चार पे भी सोए हुए थे। मैंने कहा नहीं, मैंने ज़मीन पे सोना है। तो वो जब सांप आया मेरे शर्ट के अंदर तो मैंने उसको ये समझा कि शायद ये छिपकली है, मेंढक होगा, तो मैंने उसको ना सोए सोए हाथ से ऐसे किया है। मतलब फिर भी मैंने इतना नहीं किया कि छिपकली होगी तो भी कुछ हो सकता है, मेंढक होगा तो भी कुछ हो सकता है। मैंने कहा नहीं, छिपकली है, मेंढक होगा। मैंने उससे ऐसे किया तो वो ना फिर भी साइड पे नहीं गया, वो थोड़ा सा और ऊपर रेंगना शुरू हो गया। तो फिर जब मैं उठी, मैंने उसको ना ऐसे पकड़ा है, ऐसे वही मैंने जैसे शर्ट से बाहर निकला तब मैंने देखा कि सांप। फिर मैं थोड़ा सा मतलब कि बोली हूँ कि अपनी मामा को बुलाया, मैंने कहा मम्मा सांप। तो मम्मा भी कहती कि शायद ये ना ख्वाब देख रही होगी तो उसमें डर गई है, तो उन्होंने भी इतना गौर नहीं किया। तो साथ बाबा चापी भी थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर ऐसे उठे और उनको मारा। ओके। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने एकदम छत पे दोबारा फिर खड़ी हुई थी, तो मेरी ताई की बेटी कहती है कि तुम ना यहाँ पे खड़ी हुई, यहाँ से सांप वगैरह भी निकल सकते हैं। तो फिर ताई बोल कर कहती है कि नहीं, जिसने हाथ से पकड़ा उसको किस बात का डर होगा। तो तब से मैंने खुद को ये परसेप्शन बना ली कि नहीं, ओह ग्रेट। मैं कर सकती हूँ। जहाँ से हमने बात शुरू की थी ना, फॉर यू दैट यू हैव फॉट योर फेयर्स, परसेप्शन अगेन इज ग्रेटर देन रियलिटी। उसकी रियलिटी सांप थी लेकिन उसकी परसेप्शन मेंढक या छिपकली था। इसी तरह कोई भी अटैकर अगर आपकी परसेप्शन में आपसे छोटा है, आप उससे स्ट्रांग हो, तो वो कुछ नहीं है आपके आगे। और सिंस उन्होंने अपने लाइफ के उस फेज़ में सांप से खुद को डिफेंड किया हुआ था, तो अब वो कहती हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। दो ह्यूमन्स भी दे आर इवन वर्स देन स्नेक्स, बट स्टिल यू आर अ ब्रेव वुमन दैट यू डिफेंडेड योर सेल्फ बाई यूजिंग योर परसेप्शन एंड मेंटल साइकोलॉजिकली। आपने खुद को कहा कि आई कैन डील विद इट, कूल रखा, रिलैक्स रखा, स्ट्रेस नहीं ली सिचुएशन की और ख़ुद को उससे निकाला। सर, जूडो की कोई और टेक्निक्स आप इनको बताना चाहेंगे? पहली मैंने आपको बताई है कि अपने हैंड की बेस आपने यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें मोस्टली आपने कोशिश करनी है कि आप उसका नोज़ को डैमेज करें। ये इतनी पावरफुल है कि ये उसका नाक तोड़ देगी। सेकेंडली फिर ये चिन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जहाँ आपको ज़्यादा ईजी लगे। उसके बाद अगर पीछे से आपको किसी ने अटैक किया हुआ है या होल्ड किया हुआ है तो उसमें आप अपनी एल्बो और ये किक, ये दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एल्बो डायरेक्शन देख लेनी है जो इजी हो, कुछ लोग राइट होते हैं, कुछ लोग लेफ़्ट होते हैं, जिनको वो इजी लगे उस हिसाब से आपने अपनी एल्बो से उसको फोर्स करना है, उसको पीछे करना है, हटाना है, अपने आप को डिफेंड करना है। थर्डली आप अपनी ये लेग यूज़ करके ग्रोइन किक कोशिश करें कि उसके इस हिस्से पे लगे, इससे उसको फोर्स भी ज़्यादा मिलेगी और उसको डैमेज भी ज़्यादा होगा, पीछे की फोर्स। जी सर, प्लीज़ टर्न अराउंड। ग्रोइन किक का प्रैक्टिकल करते हैं Yes. हम फ्रंट से। ऐसे आपने अगर किक बाहर को निकाल ली तो ज़्यादा फोर्स लगेगी रादर देन ठुड्डे लगाना, राइट। ग्रोइन किक को गूगल करें और सीखें किक्स लगाना, ठीक है। बेस ऑफ हैंड अटैक का प्रैक्टिकल करके दिखाएं। इनसे सब प्रैक्टिकल लें ज़रा। नारा आज लगाना दो है girls आ आपने, जाएं आपस में। अल्लाह का नारा लगाएं बैठे बैठे और बेस ऑफ हैंड अटैक से अटैकर को ज़रा अटैक करें। अल्लाह, आइज क्लोज करके ये इमेजिन करें। मैं गिनती करूंगी 1, आपने सबने नारा लगाना है अल्लाह और अटैक करें। 1, आवाज़ निकालो। 1, आप भी इनके साथ नारा लगाएं। 2, अल्लाह 3, अल्लाह 4, अल्लाह। वेरी तो गुड। जरा झटका देने की कोशिश करें, आप लर्न Force कर रहे पैदा हो, करें। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली, अच्छा इसके लिए सर ने कहा कि इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। आप में से डेली एक्सरसाइज कौन करता है? कोई जिम जाता है? घर में वर्कआउट करते हैं? कितने लोग करते हैं? 1, 2, 3। कोई ऐसा जो रनिंग करता हो? जी। तो जिस इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं डिफेंस करने के लिए, उसमें हमारी टिप आपको ये है कि आप लोग एक्सरसाइज डेली करें जो कि आपको थोड़ा बहुत फिट रखे। अगर आप खुद को टाइम दें और रनिंग करें डेली
तो ये आपकी ज़िंदगी को एक्सपैंड करेगा और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हम लोग दिन में 4 माइल रनिंग करते हैं हमारी एलीट में। जहाँ आप आई थी आपने देखा भी होगा हमें। अच्छा, जब आप आई थी तब क्या एक्टिविटी चल रही थी उधर? वहाँ पे हमने तो ज़्यादातर लीड पे यही देखा था कि हम लोगों को विजिट करवाए थे, डिपार्टमेंट हॉस्टल्स वगैरह दिखाए थे वहाँ पे कि किस तरह आप लोगों की लाइफ, किस तरह आप लोग सब अपना मैनेज करते हैं। उसके बाद एक वो थी कि अब ट्रेड टाइप कहते हैं कि वो प्रॉपर उन्होंने वो दिखाई थी हमें। ओके, उसके बाद हमारा खत्म हो गया। सही, Exactly. एग्जैक्टली, वहाँ पे नहीं चलने देते। यस जी। तो इसके साथ रनिंग के साथ साथ पैरा पीटी करते हैं हम, फिजिकल ट्रेनिंग। पैरा पीटी की एक्सरसाइजेज हैं जो करके जूडो की और कराटे की टेक्निक्स जो हैं वो आप ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई कर सकते हैं। तो रनिंग करें, इसके साथ साथ अच्छा खाना खाएं। खाने में क्या खाती हैं आप, बताएं आप क्या खाती हैं सुबह से शाम तक? चिकन। नहीं, नाश्ता क्या करती हो आप? नाश्ता मोस्टली लेट उठते हैं तो नाश्ता तो वैसे भी छुट्टी है तो नाश्ता नहीं करते, मतलब अच्छा, खाना बनाया कितने बजे उठती हैं आप? 11 बजे 12 बजे। ओके, 11 बजे। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लेट तो 4-5 शाम के। जल्दी उठ जाए तो 1 बजे। कोई बात नहीं, पीछे वाले कभी बताएं, हम भी आपके कितने जैसे बजे हो उठता है गए थे। कोई? सुबह 6 बजे। 6 बजे वाले कितने हैं? 8 बजे वाले, 10 बजे वाले, 12, गुड, 2 बजे और फिर 4। नहीं बेटे, पर डेली का पैटर्न तो यही है ना। और डेली का पैटर्न वो है कि 12 बजे तक अगर मैं सो के नहीं उठी तो 12 बजे तक की जो ज़िंदगी है वो तो मैंने देखी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी ऐसे ज़ाया हो गई। तो अगेन मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ, मुझे यहाँ खुद को खुद से बचाना है। आप भी अपने दुश्मन हो सकते हैं। इफ़ यू थिंक सो कि आप अपने दोस्त हैं, तो ये हर सिचुएशन में नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हम सिर्फ बाहर की दुनिया से हमें खुद को बचाना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइफ में हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ऐसे सिचुएशंस में परफॉर्म करना पड़ता है जहाँ वी आर आर ग्रेटेस्ट एनिमीज़। वहाँ वो एनिमी हम खुद ही हैं। अपनी चॉइसेस से, अपने परफॉर्मेंस से हम अपने आप को बना भी सकते हैं और अपना तबाह भी कर सकते हैं। तो खुद को खुद से भी बचाएं। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि अपने दोस्त बन जाएं और अपने सपोर्टर बन जाएं इन एवरी सिचुएशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ कहें कि मेरी सपोर्टर मैं हूँ, कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अगर मैंने खुद को सपोर्ट करना है तो कैसे करना है? नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी, अपने आप को पुश करना है, अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना, लाइफ में जो खुद पे जुल्म भी नहीं करना। आप लोग सारे ना, कोई इंजीनियर, कोई मैस मीडिया, ये यहाँ तक आने के लिए खुद को एक पैटर्न रूटीन से लाए हैं और कभी कभी खुद पे टू मच बर्डन डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं। ये सॉफ्टवेयर वाले अपना काम करते रहते हैं, जागते रहते हैं, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं। तो वहाँ पे रुक जाना है, खुद को इतना भी नहीं करना कि खुद के खुद ही दुश्मन बन जाए। इफ़ समबडी इज़ बोल्ड इनफ, कोई हमें बताएगा कि कभी खुद का नुकसान किया हो? कैसे किया है अपना नुकसान आपने? जी, कट लगाया था। आपने क्या किया था? जैसे काम के पास हमारे पास टाइम है और हम लोग उस टाइम पे काम नहीं कर रहे थे कि ऐसे सब थोड़ा थोड़ा करके डेली का रूटीन में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डे को खुद को बर्डनाइज कर देते हैं, स्ट्रेस में फील होते हैं कि यार चलो आखिरी दिन करते हैं। उस टाइम पे हम स्ट्रेस होते हैं, हम हमारे लिए मुश्किल होता है। पेपर वाली रात को ही पढ़ते होंगे। तो दैट्स हाउ आप अपने आप के एनिमी बन रहे हो। अगर चीज़ें स्लो स्लो साथ साथ की जाएं, दो मेरी बात मैं कह रही हूँ, ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इफ़ समबडी अपना दुश्मन नहीं बनना चाहता तो आप इस बात को काउंट ज़रूर करेंगी कि मैंने खुद को खुद से भी बचाना है। आपने कट किस साल लगाया था? अपने बॉडी के किस ऑर्गन पे लगाया था? किधर? बाजू पर। निशान है? किस चीज़ से लगाया था? ओके, इमोशन क्या था जिसने ये करवा दिया? एंगर। ठीक है, आपकी फाउंडेशन की वीडियोस मैंने देखी हैं, मतलब एंगर मैनेजमेंट की भी वीडियोस आपकी हैं। आप लोगों को पहले एंगर मैनेजमेंट सिखाई भी जा रही है, मगर मज़ीद शॉर्टली मैं उसमें ऐड कर देती हूँ कि एंगर का डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है। सेल्फ डिफेंस में एंगर, मेरे एक पेशेंट थे
ही वॉज वेरी एजेड और उनका एंगर का प्रॉब्लम था व्हेन आई वाज वर्किंग इन द हॉस्पिटल्स बिफोर दिस जॉब। तो हमारे पास वो उनका हाथ जख्मी था, उन्होंने अपने वेपन से, गुस्सा इतना आया था कि अपने हाथ पे गोली मार ली थी और वो थेरेपी के लिए आए थे। अच्छा, आप गेस करें कि उसकी वजह क्या होगी? बहुत एक्सट्रीम बात होगी। ओके, उसकी वजह ये थी कि उनके बेटे ने उनको टीवी का रिमोट नहीं पकड़ाया था। that is anger. That's how we need to take seriously how to do our anger management. एंगर है, मैनेज नहीं किया तो वेपन से हम अपने हाथ पे गोली मार लेंगे उसको चैनलाइज करने के लिए। एंगर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी जगह पे बैठी हो, खड़ी हो, आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अभी मेरी किसी बात पे आपको गुस्सा आ गया है तो आप बैठी हुई हैं, आपने खड़े हो जाना है। आप खड़ी हुई हैं, आपने बैठ जाना है या लेट जाना है। अपने स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज किया आपने पहले। अगर फिर भी आपका एंगर ठीक नहीं हो रहा, आप उठ के कमरे से बाहर चले जाएं, फ़र्क पड़ेगा। आप इस इन्वायरमेंट से निकल के आपका एंगर मैनेज होगा। फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप पानी पिए। जी, बहुत अच्छा पॉइंट। वाटर एक्सपोजर दें खुद को, नहा लें, वज़ू करें, पानी ज़्यादा पिए। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, जूस पिए, लेकिन अब तक ठीक हो चुका होगा आपका एंगर। दिस वे यू विल डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट योर ओन एंगर। इसी तरह ह्यूमन इमोशंस और भी हैं जिनसे हमने डिफेंस करना है। उन एज वुमेन सबसे बड़ा इमोशन लव है, उससे भी हमने खुद को डिफेंस करना है अपना। इफ़ द लव इज डिस्ट्रक्टिव, इफ़ द लव इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल्स, डिफेंड योर सेल्फ। द आर्ट ऑफ वॉर आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ने को कहा था कि आपने अपने एनिमीज को पहचानना है और जनरली अपने एनिमी के साथ डील करना है, अपने एनिमी को समझना है, फिर ही आप अपने एनिमी को हरा सकेंगे। और मैंने जो नोटिस किया है अपने सेशंस में, मोस्टली लड़कियां ज़िंदगी में जो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं वो इस इमोशन के ऊपर करती हैं। इस इमोशन पे एज इन शादी किसी भी लड़की की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो गलत बंदे से कर ली तो सेल्फ डिफेंस का सेशन तो बेकार गया आपका, अगर ज़िंदगी ही गलत इंसान से गुजारी। एक और पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था कि खुद पे ज़्यादा जुल्म नहीं करना, टू मच नहीं हो जाना, राइट और रॉन्ग में खुद को इतना नहीं हमने जकड़ देना कि हमारी सिचुएशन वर्स्ट हो जाए। तो हमने खुद को ईज़ देनी है, खुद के साथ फ्रेंड की तरह रहना है, खुद को सपोर्ट करना है ताकि लाइफ में हम सेल्फ डिफेंस कर सकें और लाइफ में हम अच्छी चॉइसेस को अपना सकें। सेल्फ डिफेंस का टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो 5 मिनट में हम Q&A कर लेते हैं कि अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, अटैक या किसी इवेंट का सेल्फ डिफेंस क्लियर नहीं है आपके जहन में, उसको कैसे डील किया जाए। आप उसको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हम इस सिचुएशन में कैसे सेल्फ डिफेंस करें। ऑल्दो हमने फिजिकली आर्म्ड सिचुएशन आप किस किस के पास वेपन है, वेपन एज इन कोई पिस्टल, ग्लॉक, आप लोगों के पास वेपन नहीं है तो हमने उसको डिस्कस नहीं किया कि वेपन है तो डिफेंस कैसे करना है। अनआर्म्ड सिचुएशन में हमने कर लिया, फिजिकल में कर लिया, साइकोलॉजिकल में कर लिया और जनरली अपने एनिमीज़ को कैसे डील करना है वो कर लिया। अदर देन दैट अगर आपको कोई सवाल जहन में है तो आप पूछें, हम उसको डिस्कस करते हैं। फोन पर हमें कोई थ्रेट करता है, गालियां देता है, उसका क्या इलाज है? ये तो वैसे है ना, अब हम पर ऐसे अटैक नहीं कर सकता, ज्यादा अटैक होते हैं फोन पर। ये लड़कियां हैं ना, लड़कियां ये अगर किसी से हो भी जाते हैं, ये लव में आ जाती हैं। हाँ जी ब्रेकअप हुआ तो उनको तंग करती हैं। ये पॉइंट हमने ना आई गेस मिस हो गया लेकिन नोट किया था। पिक्चर्स और वीडियोस आपकी पर्सनल पिक्चर्स, वीडियोस, कोई जी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई आपको उनके थ्रू, तो आपने क्या करना है उसके लिए आपके टिप्स यही हैं। आप पुलिस से रब्ता करें, कॉल द पुलिस इज़ योर फ्रेंड। मैकेनिज़्म बना हुआ है, FIA, साइबर क्राइम, रिपोर्ट करें। अगर हरासमेंट को ले लें, फ़ोन पे कोई हरास कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बंदा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके मैकेनिज़्म बना होगा कि उसको कैसे रिपोर्ट करना है। वहाँ नहीं है, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करें, CM पोर्टल्स, PM पोर्टल्स। आप लोगों के पास वो मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स ही होंगे मोस्टली के पास, उसमें आप एक ऐप इंस्टॉल करें। हम पंजाब पुलिस की एक ऐप है, वुमेन सेफ्टी ऐप,
उसके ऊपर एक ना ट्रिगर बटन बना हुआ है। इन केस अगर आप किसी सिचुएशन में फंसती हैं तो वो वहाँ से आपको सेव करेगी। वुमेन सेफ्टी, आप आपकी लोकेशन को हम वहाँ पहुँचेंगे, 15 की कॉल आप करती हैं, हमसे रब्ता करती हैं, हमारे आईजी हेडक्वार्टर्स में वो आपकी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं और उन कॉल्स को मॉनिटर किया जाता है, और उन कॉल्स को जब तक के फीडबैक नहीं मिलता वो ख़त्म नहीं होती। साइबर क्राइम, FIA, इनसे रब्ता मैकेनिज़्म बना हुआ है। आप अगर किसी को नहीं बताना चाहती, आपकी प्राइवेसी कोई इन्वेड नहीं करेगा। मैकेनिज़्म सारा पुलिस ने बनाया हुआ है, पिक्चर्स का, वीडियोस का, फ़ोन पे धमकी, डेथ थ्रेट दे दी, बदतमीज़ी कर दी, इवन रास्ते में चलते लड़के ने बदतमीज़ी कर दी, लेकिन आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती। बात ये है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आप उस पर चलते नहीं हैं। फियर्स नोट किए हैं, उनमें कोई ना कोई फियर होगा जो आपको रोक देगा। उस रास्ते को फॉलो करोगे, आपकी जान बच जाएगी। ऐसे जी कि वो उस रास्ते को फॉलो नहीं करती। वे बना हुआ है, ऐप्स हैं, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा तो ही बात आगे बढ़ेगी ना। रेप के ऊपर हमने पहले बात की थी, रेप के डिफेंस कर लिया, नहीं हुआ, अल्लाह ना करे अगर हो गया, फिर आपने कैसे उसको डिफेंड करना है अपने आप को। पहली बात है, आप में से किसी ने तो दूसरों को भी बताएं, आपने बॉडी वॉश नहीं करनी, नहाना नहीं है, आपने पहले अपना किसी विमेन पुलिस स्टेशन जाना है, रिपोर्ट करनी है, वो आपका मेडिकल हम खुद कराएंगे, आपकी FIR होगी, आपके रेपिस्ट तक बाद में एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैंने जाना है, आपको बचाना है। आपके साथ जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसका आपको जस्टिस दिलाना है। मैं वुमेन पुलिस स्टेशन में मैंने जॉब की है एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हम वहाँ यही चीज़ें डील करते हैं। वो आती हैं हमारे पास, ये हुआ है, वो हुआ है, तीसरे चौथे दिन आके वो खुद मुकर जाते हैं कि हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ। तो ये आपने ख़ुद को जब मजबूत कोई फ़ैसला किया, मजबूत बनाना है, जस्टिस लेना है, फिर उसके ऊपर चलना है। अदर देन दैट बहुत सी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जो आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, करोगे नहीं, 3, 4 साल, 5 बाद आपको 10 साल बाद रियलाइज़ होगा कि वो दर्द अभी मेरे अंदर है, आई नीड टू गेट थेरेपी, या मुझे इसका इलाज करना है कोई। सो इट्स बेटर कि जो दिल में है वो करो, स्ट्रॉन्ग रहो, खुद को सपोर्ट करो, जैसे आप अपने किसी बहन भाई को सपोर्ट करते हो। हर एक पे हम रहम कर देते हैं, खुद पे नहीं करते, खुद को भूल जाते हैं। अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाओ, दैट इज़ योर सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एनीथिंग एल्स? जी जी, हमारे पास टाइम कम है तो क्विकली। जब हम पे कोई अटैक करे, हम फिजिकली तो उसे कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल से पहले हम पैनिक हो जाते हैं सबसे पहले। तो उस सिचुएशन में हम अपना पैनिक सिचुएशन कैसे डील करते हैं? उस सिचुएशन में आप जब डेली एक्सरसाइज, आपको टिप दी है, डेली आप वर्जिश कर रही होंगी, आप रनिंग कर रही होंगी, आपने अपने आपकी बॉडी को आदत लगाई होगी स्वेटिंग की, आप स्ट्रेस नहीं आएगी आपको, आपने एक्सरसाइज में वो स्ट्रेस फेस की हुई है। मज़ीद के पैनिक नहीं होना, उसके लिए आप ना योगा के बारे में पढ़ें, माइंडफुल एक्सरसाइजेस सीखें, सांस की वर्जिशें सीखें कि कैसे रिलैक्स करना है आपको किसी पैनिक सिचुएशन में, नाक से सांस लें और गले से निकालें। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको रिलैक्स रखेंगी। चलें, आई थिंक इट वाज। जी जी, अगर आपको कोई टॉन्ट वगैरह करता हो, मतलब मोस्टली आम रूटीन में बहुत ज़्यादा, कि आप मतलब कोई बहुत क्लोज है, वर्बली आपको कोई हरास कर रहा है तो उसका क्या करना है? जी, टॉन्ट कर रहे हो, मतलब जैसे कोई फैमिली मेंबर घर का वो टॉन्ट कर रहे हैं, उसका आई गेट इट, आई गेट इट, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ रहा है। इसके लिए ना आप सब ने लाइफ में अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं। कोविड आया, कोविड ने हमें क्या सिखाया कि बाउंड्री ज़रूरी है लाइफ में, पर्सनल स्पेस ज़रूरी है। घर वाले, बहन भाई, दोस्त, नौकरी पे जो भी हैं, उनको कहें, कम्युनिकेट करेंगी आप, जो भी आपको टॉन्ट कर रहे हैं ना, आप उनसे बात करें, आप उनको कहें अम्मी, भाई, मेरी ये बाउंड्री है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप क्रॉस करेंगे आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। सीरियस होकर आप अपनी कोई बात मनवाना चाहें और कोई माने ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। अपनी बाउंड्री सेट करें, अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को ना आने दें। और अटैक्स में भी कहीं भी बैठी हैं, अपनी स्पेस मेंटेन करके आप बैठें, ताकि कोई अटैकर फौरी अटैक ना कर दे आपके ऊपर। बाउंड्री और स्पेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, घर वालों वाला वो यूनिवर्सल इशू, उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। समटाइम्स यू हैव टू के स्वैलो योर फीलिंग्स। समटाइम्स आप सब्र करते हो, अगर कोई बात है, माँ बाप की स्पेशली, वो गलत भी कह देते हैं, इट्स ओके, उनको सब माफ़ है। बहन भाइयों के साथ आप आर्ग्यू किया करें, एंड बिलीव यू मी, योर पेरेंट्स आर योर एवरीथिंग।
हमेशा उनकी हर बात मानेंगे, नुकसान भी होगा, सेटिस्फेक्शन होगी, तो उसका उन टॉन्ट्स का कोई वो नहीं है। बहन भाइयों का, उसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, पैसा कमाओ, स्ट्रॉन्ग बनो, किसी की बात सुनने की वो ना रहो। आई हैव ए फ्रेंड्स जिनकी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत स्किल्स हैं, तो अगर आप उनको, इन स्टूडेंट्स को ना फाइनेंशियली खुद को कैसे इन्होंने डिफेंड करना है, फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस का लेक्चर दिलवाएं, पैसे बचाने कैसे हैं, कमाने कैसे हैं, और पैसों के लिए किसी का वो भाई बहन भाइयों का ना करना पड़े, तो आपको कोई टॉन्ट नहीं करेगा। सब आप अपने साथ, आप चाबी बताइए आपको, आप अच्छा आपके पास मेकअप होता है मोस्टली, वो भी आपका वेपन होता है, आपके हेयर ब्रशेस, आपका पेपर स्प्रे रखें, परफ्यूम होता है पास आपके, परफ्यूम छिड़क दें। कोई ब्रश टाइप जो चीज़ है ना, उसको आप कोशिश करें उसकी आइज़ में मारें, ठीक है, उससे उसको नुकसान पहुंचेगा काफ़ी। अपनी लिपस्टिक को भी एज वेपन आप यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ इज़ वेपन इफ़ यू हैव विल एंड पावर, कि माइंड में है आई कैन फाइट। एक क्वेश्चन था हाइपोथेटिकल कि अगर आपका अटैकर आपको पीछे से अटैक कर रहा है और उसकी हाइट भी आपकी इक्वली है, तो इज इट सूटेबल कि आप उसको किडनी पे अटैक करें या अंडर आर्म्स में? किडनी इज़ मोर सूटेबल, आपका एंगल ठीक बनेगा, उसके आपकी एल्बो का डायरेक्ट यहाँ हिट होगा और पेन भी यहाँ ज़्यादा होगी। अंडर आर्म वो थोड़ा अनकंफर्टेबल एरिया है कि आप अपने कंधे को किस तरह मिलाओगे ना, फिर उससे जर्क देना है बेसिकली खुद को निकालने के लिए, एस्केप करने के लिए। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे, गूगल पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ देख के घर में प्रैक्टिस करें किसी भी दीवार के साथ या वैसे जनरली, तो वो आपको हेल्प करेगा। हाँ, अगर इन चीज़ों के लिए आपको लगता है कि आपको कोई कोर्स जूडो का लेना पड़ेगा, कराटे का लेना पड़ेगा, तो आप घर बैठ के ये सब कुछ सीख से या सकते हो। थोड़ा सा बताने से तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी लाजमी। आप वीडियोस देखें, हर कोर्स यूट्यूब पे मिलेगा आपको। अपने आप को, आप अगर चीज़ों से बार बार देखेंगे, नॉलेज खुद लेंगे, माइंडसेट बनाएंगे, तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकेंगी अपना। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद अस। थैंक यू।